ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگاہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب وہ نوکری کے لیے میرے پاس آیا تو میں اس حسن کو دیکھتی رہ گئی۔ سیدھا سادہ بھولا بھالا نوجوان سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ سرخ و سفید رنگت، دراز قد، پہاڑوں کا باسی مگر نرم ہو، سخت ضرورت مند نظر آتا تھا۔ اس نے اپنا نام ساجد بتایا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا تعلیم ہے؟ کہنے لگا، مردان کا رہنے والا ہوں، میٹرک پاس ہوں، گاڑی چلانا بھی جانتا ہوں۔ اس نے اپنی جگہ کا نام بھی بتایا۔ میں نے کہا، شام کو سابقہ ملازمت کے متعلق کاغذات لیتے آنا، میرا بیٹا دیکھ لے گا۔ میرے جواب دینے پر وہ وہاں سے چلا گیا، مگر میرے ذہن پر اپنے شفاف لہجے کے گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ مجھے بیوہ ہوئے 14-15 سال گزر گئے تھے، تب سے ابھی تک کسی مرد میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی اچانک وفات کے بعد ان کا کاروبار سنبھالنے اور اپنے اکلوتے بیٹے افتخار کی پرورش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنی ذات کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میرے بیٹے نے تعلیم مکمل کر لی تو اس نے اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا، مگر پھر بھی مجھے فرصت نہیں ملی۔ چاہتی تھی کہ وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا جائے۔ سوچ رہی تھی کہ کوئی شریف اور اچھا معاون مل جائے، میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا سکے تو بیٹے کے ہوتے اسے رکھ لوں تاکہ وہ ٹرینڈ ہو جائے۔ اسی اثنا میں ہمارے پرانے محافظ نے اپنے علاقے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو نئے محافظ کی ضرورت پیش آ گئی۔ تبھی میں نے قیوم لالا سے کہا کہ آپ ہی کوئی بھروسے کا آدمی لا دیں جو آپ کی جگہ کام کر سکے۔ ملازمت کے سلسلے میں تبھی ساجد آیا تو مجھے پہلی نظر میں اچھا لگا۔ ساجد کو لالا ہی لے کر آیا تھا۔ میرے بیٹے نے اس کے بھروسے کا آدمی سمجھ کر رکھ لیا۔ واقعی یہ لڑکا نیک تھا۔ دیانتداری سے کچھ عرصہ کام کیا تو میں نے اسے اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے کی ترغیب دی۔ وہ خود بھی پڑھنا چاہتا تھا مگر حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کا خاندان خانہ جنگی کی نظر ہو چکا تھا۔ چچا نے اس کی پرورش کی تھی مگر چچی کی بدسلوکی کے باعث اب وہ مزید وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کہنے سے ساجد نے شام کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ محنتی اور ذہین تھا۔ صبح سے 5 بجے تک میرے بیٹے کے ساتھ آفس میں ہوتا اور شام کو کالج چلا جاتا۔ رات کو کھانا کھا کر ہمارے دیے ہوئے کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔ جلد ہی اس نے بزنس کے رموز بھی سیکھ لیے۔ اسے آفس ورک بھی سونپ دیا۔ اس کی جگہ ایک اور شخص کو میں نے محافظ رکھ لیا۔ روز اول سے ہی مجھے اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کی حلیمی، سنجیدگی اور فرما برداری بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ کھرا آدمی ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے بڑی جان فشانی سے ہر کام کیا جو بھی میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا، کیا تو ہمارے دل میں جگہ بنا لی۔ میں اس کے ہر مسئلے میں دلچسپی لیتی۔ اس کے زیادہ تر مسائل اپنی پڑھائی کے بارے میں ہوتے تھے۔ جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی میں فوری طور پر اسے مہیا کر دیتی۔ اس کے امتحان ہوتے تو ہم اسے ان دنوں میں چھٹی دے دیتے اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پرچے دیتا۔ یوں اس نے گریجویشن مکمل کر لی۔ میرے جیٹھ عرصہ دراز سے لندن میں سکونت پذیر تھے۔ انہی دنوں وہ پاکستان آئے۔ میرے بیٹے سے کہا کہ تم میرے پاس لندن آ جاؤ، بزنس میں ماسٹرز کر لو، میرے گھر رہو گے تو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ دراصل ان کا ارادہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا تھا، اسی لیے وہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کے بزنس کو بھی سنبھالے ہوئے تھا مگر تایا کے جوش دلانے پر وہ نئی دنیا میں جانے کے خواب آنکھوں میں بسا کر بزنس میرے حوالے کر کے لندن چلا گیا۔ شادی سے پہلے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لی تھی، جبکہ شوہر کے کاروبار کو میں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ کاروبار چلانے کا مجھے تجربہ تھا
मगर अब अपने बेटे के बगैर खुद को अकेला महसूस कर रही थी। ऐसे में अगर किसी को सहारा बना सकती थी तो वो साजिद ही था। वो अपने घर बार से महरूम, रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। ऐसे में उसे भी किसी सहारे की ज़रूरत थी। तभी उसने मेरे कहने पर तालीम मुकम्मल की और इस कदर मेहनत की कि बीकॉम किया और फिर अपनी MBA के ज़रिए तालीम मुकम्मल कर ली। जिस रोज़ मेरा बेटा लंदन रवाना हुआ, मैं खूब रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए मुझे तसल्ली दी। कहा कि आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। उसके इन अल्फाज से मैंने खुद को तवाना महसूस किया। उस वक्त मुझे अपने महरम वजूद का शिद्दत से एहसास हो रहा था। तमाम ज़िंदगी महरूमी में गुजारने का कलक भी आज के दिन ही हुआ। जिस बेटे के लिए उम्र के सुनहरे दिन बेवकी में गुजारे, उसे पाला पोसा बड़ा किया, वही मुझे छोड़कर समंदर पार चला गया। मैं अपने कमरे में बैठी माजी की यादों में गुम थी। आज उस दवाजी ज़िंदगी का पुरआसाइश दौर याद आ रहा था। ऐसे में हमदर्दी के चंद अल्फाज के लिए मेरा माविन साजिद सामने आया तो नज़रें उसके गमगुसार चेहरे पर जम गईं। उसने मुझे इंतहाई खुलूस से दिलासा दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उसके साथ 5 साल गुजारने के बाद एक पुख्ता और मजबूत इंसान उसमें नज़र आता था। उसके लड़कपन का, भूलपन का दौर ख़त्म हो गया था। वो एक पुरएतमाद और बुर्दवाद मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि मेरा गम बांट ले और हम खूब अच्छी तरह बातें करें। मगर मेरे और उसके दरमियान जो फासला था, उसे पार करना न उसके बस की बात थी न मेरे बस की। वो मुलाजिम था, मैं मालिका थी। उस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी। वो भी पहले से ज़्यादा मेरी ताबेदारी करने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं बेवकी के बाद एक बार फिर से नई ज़िंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इस तरह के जीवन साथी की आरज़ू करती, जो औरत का एहतराम करने के साथ दिलसोजी से गमगुसारी का सलीका भी जानता हो। मगर ज़िंदगी के इस मोड़ पर जबकि मेरा बेटा जवान था, मेरी उम्र 45 साल थी, इस तरह की आरज़ू करना दीवाने का ख्वाब था। अब ये सोच मुझे किसी तरह भी ज़ेब नहीं देती थी। एक लम्हे का तसव्वुर भी कि एक नई ज़िंदगी फिर से शुरू कर दूं, मुझे हिजाब दिलाने को काफ़ी था। मेरी और साजिद की उम्रों में भी बहुत फ़र्क था। वो उम्र के लिहाज से मेरे बेटे के बराबर था। उसकी उम्र 22 साल होगी। ताहम जब उसने एक मजबूत मर्द की मानद मेरी गमगुसारी की तो मुझे उसके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ, जो किसी भी औरत को दरकार होता है जब वो अकेली और बग़ैर मजबूत सहारे के ज़िंदगी गुजार रही हो। अगरचे दौलत भी एक सहारा होती है, मगर वो इतना मजबूत नहीं होता। कभी कभी तो दौलत ही तन्हा औरत को बहुत ज़्यादा गैर महफूज बना देती है। इन दिनों साजिद मेरा ख्याल रख रहा था। मेरे दिल में उसके लिए फितरी जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को ज़ेब नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी और बेवा हो गई। मेरी उमंगें और आरज़ुएं अधूरी रह गईं। अब जबकि अपनी जिम्मेदारियों से जागी तो मेरे अंदर की सोई हुई औरत बेदार हो गई। कभी सोचती कि काश मेरी कोई और भी औलाद होती, कभी सोचती कि मैंने अपना घर क्यों नहीं बसाया, आज मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने तो होते। अब जब भी साजिद आमदनी का हिसाब किताब देने आता, मेरे सामने बैठा होता, तो मेरी कैफियत अजीब होती। मैं किस तरह उसे अपनी कैफियत बताती कि मैं दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों बेवा को दोबारा घर बसाना चाहिए। लोग कहते हैं कि बेवा का शादी करना कोई जुर्म नहीं, और मैं इन बातों से बेजारी महसूस करती थी। मुझे गुस्सा आता था कि बेवकी कोई जुर्म तो नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मगर अब लगता कि औरत का हर हाल में हकीकी सहारा उसका जीवन साथी होता है। एक रोज़ हम गाड़ी में सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के बायस रुकी। एक बूढ़े भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दें, भूखा हूँ, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 50 रुपए उसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। कन अखियों से साजिद की तरफ देखा, वो भी कुछ शर्मिंदा सा हो गया। तभी उसकी खिफ़त मिटाने को मैंने कहा, तौबा है, कभी कभी ये भिखारी भी ना कोई अनहोनी बात कह देते हैं। अब इस उम्र में भी कोई औरत ब्याहता हो सकती है, क्यों नहीं?
माशाल्लाह आप किसी तरह भी ज़्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि अपनी कामत की वजह से आपसे उम्र में मैं ज़्यादा लगता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तो मसरत का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। साजिद, तुम काम में ऐसे मगन हो गए हो कि तुम्हें अपना होश नहीं रहा। कहने को तो मैंने कह दिया, मगर ये बात करके खुद शर्मिंदा हो गई। मुझे खफीफ देखकर उसने मेरी खिफत को दूर करना चाहा। मैडम, सही बात है, आप वाकई अपनी उम्र से 10 साल कम लगती हैं। बस रहने भी दो, तुम मुबालगा आराई से काम लेकर मुझे गलत फहमी में मुब्तला कर रहे हो। मैडम, मैं तो हकीकत कह रहा हूँ, अभी आप शानदार हैं, खुद से बेशक गाफिल रहती हैं। आपने ज़िंदगी में क्या देखा है? आपको तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश और मुस्तकबिल की फिक्र लगी रहती थी। दिन रात इसी धुन में सरगर्दा नहीं, चाहे तो नई खुशियाँ हासिल कर सकती हैं। क्या कह रहे हो साजिद खान? मैं हंस पड़ी। क्या मुझे बहला रहे हो? नहीं नहीं। उसे एहसास हुआ कि वो हद से बढ़ गया। तभी मुआसद खाना अंदाज में बोला, माफ़ी चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें नागवार गुजरी हैं। न जाने बेख्याली में क्या कह गया। ये बात नहीं, मगर तुम ही सोचो, जबकि आज कम सी लड़कियां घरों में बिन ब्याहे बैठी हैं, मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा? फिर वो थोड़ी देर चुप रहा। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की जसारत करूं? कहो साजिद, मैं आपसे शादी की आरज़ू रखता हूँ, मुझे आपकी चाहत है, अगर आप चाहें तो। मैं उसकी दीदा दलेरी और जुर्रत पर हैरान रह गई। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुद्दी और फर्मा बरदार मुलाजिम कभी इतनी बड़ी बात कह देगा। मैं यकदम खामोश हो गई। वो समझा कि नाराज़ हो गई हूँ, तभी उसको भी सांप सूंघ गया। कुछ देर खामोशी के बाद बोला, मैडम मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे ये बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला, दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ साजिद, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, मगर हमारी उम्रों में बहुत फ़र्क है। तुमने महज मुझसे हमदर्दी के तहत ऐसी बात कही है, मगर जज्बाती फैसलों पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। उसने पुरअज़्म लहजे में कहा, आपसे ऐसी बात कहना गुस्ताही तो हो सकती है, मगर ये जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर ये बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का इतना फ़र्क है साजिद कि मैं अब तुम्हारे बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं उस उम्र से भी आगे निकल गई हूँ जब तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की आरज़ू करते हैं। आपकी औलाद है, खुदा आपके बेटे को सलामत रखे। मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। तभी मुझे लगा कहीं ये मेरी दौलत पर नजरें न जमाए हो। खुद से छोटे बंदे से शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद की मिट्टी पलीत करना है। अच्छा तुम सोच लो, मैं भी सोच कर जवाब दूंगी। अब मैं सख्त कश्मकश में थी। दिल कहता था कि इस पेशकश को मान लो, दिमाग कहता था नहीं, अभी वक्त बीत गया है। इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते, अच्छे अच्छे मर्द भी फरेब दे जाते हैं, कहीं ये धोखा न हो। काफ़ी दिन हम दोनों चुपचाप रहे, मगर ये चुप बेमायने नहीं थी। तूफान अंदर ही अंदर पल रहा था। मैं रातों को सो नहीं सकती थी। बिलाखिर मेरा जहन और वजूद थक गए, मैं बीमार पड़ गई। अब घर में कौन था साजिद के सिवा? इसे मेरी तीमारदारी करना थी, डॉक्टर के पास ले जाता, मेरी दवा लाना होती या कुछ भी, ये सब अकेले में करता था। वाकई अकेली औरत को किसी मजबूत मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है। मुझे भी यकीनन साजिद से मोहब्बत नहीं थी, मगर वो मेरी ज़रूरत बन गया था। इसने हमेशा अपने साफ सुथरे तर्ज अमल से ऐसी जगह बना ली थी कि मैंने जहन में इसे जीवन साथी का दर्जा देना शुरू कर दिया। आदमी हर लम्हा एक ही बात सोचता रहे और उस कश्मकश से निकल भी न सके, तब एक दिन ज़रूर वो अपनी कुव्वतें खो बैठता है। हर पल सोचने से मेरे भी असाब जवाब दे गए। सर में दर्द रहने लगा। मैंने बिजनेस के मामलात से हाथ उठा लिया। तमाम अमूर साजिद के ज़िम्मे हो गए। एक दिन सर में शदीद दर्द था। मैं अपने हाथों से सर दबा रही थी कि साजिद ऑफिस में आ गया। इसके हाथ में कुछ फाइलें थीं। मेरे कमरे में आने की इजाज़त तलब की। तभी मैंने कहा, यही मुझे फाइलें दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वो कुर्सी लेकर मेरे पास आ बैठा, फाइलें एक जानिब रख दी और बोला, मैं आपका सर दबा दूं? मैंने कहा नहीं, मगर फाइलें मत खोलो, सुबह दिखा देना। इसने मना करने के बावजूद मेरी पेशानी पर हाथ रखा। मुझे उसके हाथों से सुकून मिला। बेशक औरत को अपनी पाकबाजी और मर्द की ज़ात पर एतबार नहीं करना चाहिए,
क्योंकि यकीन की दीवारें कले के मानद भी मजबूत हों, इनके टूट जाने का खतरा रहता है। मेरे अंदर भी एक महरूम औरत बरसों से सिसकती रही थी, जो बहार के किसी ताज़ा झोंके की मुंतज़िर थी और अब इतनी कमज़ोर हो गई थी कि किसी भी लम्हे दलदल में गिर सकती थी। मैंने अपने शौहर की वफ़ात के बाद कभी किसी की जानिब आंख उठाकर नहीं देखा था और पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारी थी। ताहम कभी कभी कोई कमज़ोर लम्हा इंसानी ज़िंदगी के सारे रियाज को ताराज कर सकता है। बस मैंने आंखें बंद कर ली, यूं जाहिर किया कि उस वक्त साजिद से भी कलाम करने की सकत नहीं है। साजिद ने जान लिया कि मैं उस घर की छत के अपने ऊपर गिर जाने के डर से सहमी पड़ी हूँ, लिहाजा इसने मुआसरत चाही। मेरे कमरे से चला गया। मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लें, मैं सुबह फाइलें चेक करवा लूँगा। वो अगले रोज़ भी नहीं आया और ना उसके बाद। मैंने उसे फ़ोन किया। वो बोला, आज ऑफिस से आपके पास आ जाऊँगा। सोचा आप आराम कर लें, मैं भी यहाँ मसरूफ़ हूँ, ऑफिस में काम ज़्यादा था। उसका लहजा इस कदर सपाट था कि मुझे लगा अब वो मेरी मुलाजिमत छोड़कर चला जाएगा। इसे मेरे खौफ और परेशानी से बखूबी आ गई थी। अब वो इतना तजर्बाकार हो चुका था कि किसी और अच्छी कंपनी में उसे मुलाजिमत मिल सकती थी। शाम को वो आ गया कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने, वो भी मैंने कर दिए। तब उसने कहा, मैडम, आपने मेरी दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया, शायद इतने अहम फैसले से आप डरती हैं। आपको मुझ पर एतबार नहीं तो कोई बात नहीं, हम इस बात को भुला देते हैं जैसे हमारे दरमियान कोई बात ही न हुई हो। मेरे असाब मजबूत और सोच मुतवाज़िन है। आप भी अपने असाब मजबूत रखें ताकि आपके बिजनेस पर और बुरा असर न पड़े। उसकी गुफ्तगू से मेरे दिलो ज़हन पर छाए बादल छट गए, मगर उसका ख्याल दिल से नहीं गया। ना चाहते हुए भी मैंने कह दिया, मुझे एक सहारे की ज़रूरत है। मेरे बेटे को खुदा सलामत करे, मगर वो अपनी नई ज़िंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है मैं वाकई अपना घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ कि तुम्हें इसमें खसारा होगा, जबकि मुझे नहीं, मुझे भी खसारा नहीं है। वो बोला, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। तो ठीक है, मगर मैं अपने बेटे से कैसे कहूँ कि इस उम्र में शादी की तलबगार हूँ? आप अपने जेठ को कहिए, वो यूरोप में हैं, जहाँ इस मामले में लोग और तरह सोचते हैं। यकीनन वो आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत के बाद मैंने अपने जेठ को फ़ोन कर दिया, इनको अपने मसले से आगाह किया। वो बोले, आप ज़रूर शादी कर लें, आपके बेटे को मैं संभाल लूँगा, मगर बिजनेस की मालिक आप ही रहिएगा, किसी और को मालिक न बनाइएगा। जेठ की इजाज़त से मैंने साजिद से निकाह कर लिया। इन्होंने मेरे बेटे को बाद में आगाह किया, मगर इसे इस बात पर कबूल न कर सके कि वो माँ की दूसरी शादी को कबूल करता। वो सख्त बरहम हुआ, इसने मुझसे कता ताल्लुक़ करवा लिया। कुछ अरसे बाद पाकिस्तान आकर बिजनेस अपने नाम करवा लिया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात लेकर तमाम सरमाया खुद ले गया। बेटे को बिजनेस का सारा सरमाया देखकर मैं खुश थी, मगर काश वो मुझसे राज़ी हो जाता, क्योंकि मेरे सरमाए का लालच साजिद को नहीं था। उसे एक और जगह अच्छी तनख्वाह पर मुलाजिमत मिल गई। अक्ते सानी करके मैंने अपना बेटा खो दिया। अगर मैं निकाह न करती तो बेटा न खोती। मुझे साजिद से कोई शिकवा नहीं। उसने उम्र के फ़र्क के बावजूद वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत की। मेरा इतना ख्याल रखा कि ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी, मगर मेरा दिल उसकी सारी मोहब्बत पाकर भी बेसुकून रहा, क्योंकि जिस बेटे की जवानी के सुनहरी दिनों को कुर्बान करके मैंने उसे परवान चढ़ाया था, आज मुझसे मिलना भी उसे गवारा नहीं है। शायद मेरा दूसरा निकाह उसके लिए किसी जुर्म से कम नहीं है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।